Okay, welcome everyone to Hatke Mushafiri's 8 virtual Katta. This is Katta. This is space where we have set up for like very freewheeling conversations on topics that we like to share and we would like to tune in for. So it's a very informal space. We can talk about anything, and that's why we have picked in one such topic, and we are tuning in for it today. Is development, and we will be talking with Khanjan Ravani about it. So a little bit about Khanjan. As she describes herself, she's a beginner in the development sector. But although a beginner, we should say that she's truly a self-starter because she already has a graduation in journalism, followed by masters in development from Azim Premji University. And she has already been working in the social sector for almost over 1 year, 1.5 years now. Looking at the development in different perspectives, specifically, and working in the remote areas of Orissa and Maharashtra states. So with that, I think we could start, Khanjan, and like for everybody, just a quick note that you can always in between, if you feel like asking a question, you can always let us know via chat here, or otherwise you can just plug in your audio, start your audio, and say that I have a question, and it can also happen in between. It doesn't have to wait until the end, until Khanjan finishes, as Khanjan has suggested us already. And all our talks and all our sessions are making in recording already, which we'll be sharing with everyone in due course. And so we are still finding a right platform for it. But in the meantime, yes, they are being recorded and they will be shared soon in the near future. So with that, Khanjan, should we start? Yes, thank you, Charuta. मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ. Hi, thank you everyone for joining. Thank you Charuta for the introduction. ये कट्टा में मैं थोड़ा सा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी लाऊंगी. अब तक जो हमारे सब कट्टा हुए वो मराठी में थे. आज मैं हिंदी और इंग्लिश में प्रेजेंट करूंगी. मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा हिंदी हो, पर बिकॉज माय एजुकेशन हैज़ बीन इन इंग्लिश, सो आई माइट ड्रिफ्ट टू इंग्लिश मोर ऑफन. तो अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ कमेंट करना है, अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो ideally I would have liked it to be an interaction, a conversation kind of a session, but because of the limitation of the medium it's not possible. पर किसी को कुछ questions है, कुछ comment करना है, कुछ बोलना है, तो please feel free to pitch in, interrupt, whatever. I will be glad to have your comments in between also. So as the topic, you can see, looking through a different lens at development, society and its systems. These are development, society, these are, I think, topics which we all keep hearing about, talking about in our day-to-day life conversations. We keep coming across these things, but मेरा intention है to bring in a new lens or a new perspective to it. So before starting, I would like to give a disclaimer that probably there's nothing new that you will learn from this session, or the topic is not something which we don't know about. Unlike nanophysics और quantum physics जिसके बारे में पहले कट्टा हुआ है कुछ. But as I said, the intention is to start conversations about these topics from different perspectives and through different lenses. And one such lens which I would like to bring in today is the lens of sociology. I think as far as I know, not many of us are exposed to this discipline in our academic or educational background. इसीलिए मैंने सोचा कि इस डिसिप्लिन को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए. एक नया लेंस से हमें देखना चाहिए एट डेवलपमेंट. So what
is development? I would I would have liked to have your opinions on it, but जो generally mainstream idea है development में in most of the countries, I would say, including India, development in the context of national development, taking country as a unit. So these are some of the mainstream ideas which I thought and are popular notions of what we think as development. So like GDP, economic growth, or development of infrastructure, um, projecting a country as an international superpower, ease of doing high rankings in ease of doing business, infrastructural development like highways, flyovers, dams, power plants, airports. But we also talk about health, education, infrastructure in terms of livelihood, standard of living, these things. Yeah, I would say these ideas of development belong to a particular school of thought, which we can call neoliberal capitalism, uh, which is very dominant in a lot of countries, including India, which came in India around like late 1970s, early 80s, इस time पे. And most of us are exposed to development only in these terms or this context. But there are certain people, certain schools of thought, certain ideas which challenge this mainstream notion of development. ये कुछ examples कुछ लोगों के मैंने लिए हैं because it's very difficult to cover everyone and everything and all perspectives and all approaches or all frameworks. I've taken a few which I probably relate to or uh, I agree to, you can say, but not to say that I want to propagate any of these ideas only. Mainstream cannot. Hello, किसी को कुछ बोलना है क्या? Kanjan, actually, people did pick up the word partially neoliberalism. So if you like, while you're talking about this slide, if you want to elaborate on it, you could. Okay, और I मतलब मुझे come न्यू to लिबरल मतलब क्या यही पता नहीं. हाँ, so you can pick it up अच्छा, later if sorry. you want. So I हाँ, mean there is a sorry, question I- floating. ठीक है, मैं इस पर बाद में आती हूँ. Okay, sorry, I will come to it later. So these are these are some of the ideas which have challenged the mainstream notions of development. इसमें जैसे वंदना शिवा comes from eco feminist kind of a framework approach. इसमें ये जो मैं terms use करी हुई, it's not important to go into detail, but just an overview. Vandana Shiva talks about ecology and feminism together. So she comes from that perspective of development. गांधी जी का हम कुछ लोगों को हमें पता है कि he talks about very decentralized village level idea of economy and development, going local, self dependent, जो कल मोदी ने अपने एड्रेस में बताया, गो लोकल, बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. तो ये आइडियाज गांधी जी के टाइम से आ रहे हैं. रेचल कार्सन जो एक इकोलॉजिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट पर्सपेक्टिव से आती है, शी टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट फ्रॉम एन इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फ्रेमवर्क. अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट है इंडिया में. he talks of development from a capability approach. तो for the sake of our talk, मैं ये थोड़ा सा अमर्त्य सेन वाला जो अप्रोच है उसको मैं थोड़ा डिटेल में लूंगी. इसका पर्पस बस एक ही है कि मुझे जो लेंस इंट्रोड्यूस करना है सोशियोलॉजी का, वो अमर्त्य सेन के अप्रोच में हमें दिख सकता है काफी हद तक. सो अमर्त्य सेन टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट एज एक्सपांशन ऑफ फ्रीडम. उन्होंने एक बुक लिखी है, डेवलपमेंट एज फ्रीडम. उसमें ही टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट in the
context of freedom. So what is freedom and how is development expansion of freedom, इस पर मैं मेरा टॉक थोड़ा सा फोकस करूंगी. और इसमें मैं कुछ सोशलॉजी के कंसेप्ट्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगी. ज़्यादा टेक्निकल तो नहीं है, बट फिर भी एक सोशलॉजी एज अ डिसिप्लिन के कुछ कंसेप्चुअल आइडियाज मुझे इंट्रोड्यूस करने हैं. तो फ्रीडम या उसको सोशलॉजिकल लैंग्वेज में हम एजेंसी बोल सकते हैं. So what is that? Sociology defines it as ability to make choices within a social structure or act on those choices within a social structure. So what is a social structure? Social structure को एक हम ढांचे की तरह देख सकते हैं. We are all know physical structures, like say a building or a dome. So what are these physical structures? These structures shape how you navigate a physical space, how you move across a physical space. Similarly, social structures भी वही है. They shape how you navigate through your world and your life. तो समझ लो वो एक ढांचा है, जैसे उस राइट साइड में जो डायग्राम में दिख रहा है कि इट इज अ शेप, और उसके अंदर हम हमारे उस दायरे में हम जो चॉइसेस कर सकते हैं वो हमारी फ्रीडम है. अब सोशल स्ट्रक्चर और फ्रीडम या एजेंसी का व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू. कार्ल मार्क्स जो एक सोशलॉजिस्ट है, उन्होंने he says people make their own history through not in circumstances of their own choosing. So agency is something where we get to make these choices or choose our options, but structure is something which are circumstances which are not of our own choosing. Kanjal, yes. If I could interrupt you for a minute, actually you should use a cursor if you are pointing at specific things. It could be helpful. Okay, sorry. Thank you, Charuta. I will do that. So how is again I'll come to how structure and agency are related to each other. Structure और agency एक दूसरे को influence करते हैं. So it's not that unlike physical structures, social structures are not rigid. So in spite of having this diagram as a solid shape, we can imagine structure as an amoeba which keeps changing based on our individual actions or individual behaviors. So agency will influence structure, structure will in turn influence agency. तो ये होता रहता है. इसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे all these social forces like nationality, religion, race, caste, class, gender, ये सब जो चीजें हम हमारे डेली लाइव्स में बात करते रहते हैं, these are our structures. और उन स्ट्रक्चर्स के अंदर हम जो चॉइस करते हैं, जैसे मैं कौन से कपड़े पहन सकती हूँ या मैं किस टाइप का प्रोफेशन चूज कर सकती हूँ, all these options are limited within these social structures, but they keep changing. So how do they change? For example, मेरे choices are very different from what my grandmother could choose, for example, or what my mother could choose, say for example. So ये structures, because they have changed, they have in turn changed my agency to choose things. तो शायद मेरा एजेंसी ज्यादा बड़ा है उस दायरे में, if we just take gender as a structure. So this is how structure and agency, they keep influencing each other. Okay, इसमें Charuta, are there any questions here? Not yet actually. Actually, yeah. Actually, Shraddha ने कुछ पूछा है. Sorry. Choices मतलब any specific choices? Does it depend on the structure? That's what
she said. एक्चुअली मुझे अभी तूने खंजन जो कहा वो थोड़ा बहुत समझा है. मेरे दिमाग में वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह चल रहा था कि व्हाट चॉइसेस या ऐसे कोई स्पेसिफिक चॉइसेस वगैरह. बट आई थिंक आई विल वेट फॉर इट. और अभी जो ब्रॉडली डेफिनेशन बताई है, इट्स ओके. प्लीज गो अहेड. You can think of any choices as simple as what you can eat, what you can wear, what you can study, where you can go. Simple choices are shaped by these structures. शायद आगे और clear होगा. Yeah, I think you should go ahead. Yeah. ये सब जो भी जार्गन्स शायद स्क्रीन पे दिख रहे हैं उस पर ध्यान मत दो. वो देख के प्लीज डोंट गेट फ्लस्टर्ड विद इट. सो ये जो रिलेशनशिप मैं बता रही थी स्ट्रक्चर्स और एजेंसी के बीच में, ये जो डायनामिक्स चलता रहता है, इस डायनामिक्स को देखने, द एबिलिटी टू सी दिस डायनामिक्स, इसको सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बोल सकते हैं. इट्स जस्ट जैसे दिख रहा है स्क्रीन में, वो एक चश्मा है. उस चश्मे के वर्ड्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं. बस इतना है कि ये इमेजिनेशन, जैसे just if it take the word imagination alone, what does it mean? It means you look at things in different ways, away from the normal, we can say creative ways. Sociological imagination is exactly that. You look at anything from a macro lens. तो जो राइट साइड में यहाँ पर जो पब्लिक इश्यूज, प्राइवेट ट्रबल्स दिख रहा है ना, उस पर हम थोड़ा बात कर सकते हैं कि ये प्राइवेट ट्रबल्स हो गए हमारा इंडिविजुअल एजेंसी, और ये पब्लिक इश्यूज जो हो गए वो है, उसको हम सोशल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं. तो जो भी सोशल इश्यूज की हम बातें करते हैं, वो क्या एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, वो एक प्राइवेट ट्रबल है, या वो पब्लिक इशू है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सोशल स्ट्रक्चर की वजह से आया है. ये डायनामिक समझने को हम सोशलॉजिकल इमेजिनेशन बोल सकते हैं. सो इट एनहांसेस द वेज इन विच यू कनेक्ट समथिंग टू द लार्जर वर्ल्ड. अब जो मैं डेवलपमेंट की बात कर रही थी, विच अमर्त्य सेन टॉक्स अबाउट, कि इट इज the discourse as in the process of development should be about expanding the freedom, expanding the agency. Usually development practitioners ko they are asked how you can use your sociological imagination to expand this space of freedom. So how do you look at a problem? Do you see it as an individual issue or a private trouble? Or how do you problematize it? How do you look at it from a broader public issue, from a broader structural issue perspective? इसमें बहुत सारे complexities होते हैं. A lot of factors come into play. It's not one way how sociology might probably be different from sciences. It's not black or white, or you cannot prove or disprove something. There are a lot of gray areas जिसके अंदर ये debates होते रहते हैं. So there are no fixed answers to anything. This imagination will probably help you to only ask questions in different ways or look at things from different angles. इसका एक एग्जांपल दूंगी मैं. लाइक आई सेड, सिंपल थिंग लाइक who decides what we eat? Do I have the choice? हम बोलेंगे कि हाँ, मेरे पास चॉइस है कि मैं रोटी खा सकती हूँ, सब्जी खा सकती हूँ, राइस खा सकती हूँ. But these are not the choices which I'm talking about. These are the ये कुछ दायरे में choices है हमारे. Apart from, so for example, मैं क्या खाती हूँ, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, बहुत बड़ा सोशल इशू या कल्चरल इशू भी हो सकता है. ये कैसे? तो जैसे अब हम देखते हैं इंडिया में a lot of areas have rice और wheat as their staple food. पर ये राइस और व्हीट क्या हमेशा से हिस्टोरिकली हमारे स्टेपल फूड रहे हैं क्या?
इसमें थोड़ा सा मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करती हूँ. ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में 1960s लेट 60s में आया. इससे पहले आई थिंक राइस और व्हीट इंडिया में स्टेपल फूड नहीं था. अ लॉट ऑफ एरियाज वेयर नाउ वी ग्रो राइस एंड व्हीट, वहां पर मिलेट्स, जो मिलेट्स जैसे जवार बाजरा ये सब जो ग्रेन्स है वो ग्रो होते थे. बहुत पल्सेस, लेग्यूम्स, दाल, ये सारे चीजें ग्रो होती थी विच वेयर जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट और सॉइल टाइप और बाकी इकोलॉजिकल सर्कमस्टेंसेस को सूट होते थे. ग्रीन रेवोल्यूशन को एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट माइलस्टोन माना जाता है इंडिया में, जिसके वजह से एग्रीकल्चर में बहुत प्रोग्रेस हुआ. साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया एग्रीकल्चर में. This is one side of green revolution which we know, which is very popular, which everyone talks about. But the other side of green revolution, which probably very few people talk about, are the social and ecological and cultural impacts of green revolution. इससे ऐसा हुआ कि राइस और व्हीट का डोमिनेंस हमारे ज्योग्राफी में बढ़ गया. मिलेट्स, लेग्यूम्स, पल्सेस, ये सब चीजें कम हो गई. ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आया, जो रेशन हमें मिलता है. बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो रेशन कार्ड होल्डर्स है उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से व्हीट राइस मिलता है. ये तो हम सबको पता है. तो ये व्हीट और राइस का जो इन्फ्लुएंस है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. अब हमारे प्लेट में ज्यादातर व्हीट और राइस होना is in a way limiting our choices. For example, I as in a farmer doesn't have a choice what crops he or she can grow. ये choices बहुत अब limited हो गए हैं क्योंकि इसमें market और supply chains ये सब जैसे बहुत सारे factors आने लगे. तो अगर इस लेंस से मैं देखूं, अगर सोशलॉजिकल इमेजिनेशन इस लेंस से मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को देखूं, तो शायद इट वाज नॉट डेवलपमेंट, इट वाज इन फैक्ट लिमिटिंग आवर चॉइसेस. नाउ आई डोंट have a choice of eating millet easily, although now it is, but if you see like 10-20 years back, millets were not easily grown and available. इसमें so I mean you question these notions of development, these ideas of progress which are probably imposed upon us. अब ये green revolution का history है, we can probably talk about it later, पर ऐसा बोला जाता है कि ये हम पर इंडिया पर impose किया गया था. We did not opt for green revolution, but anyway that is a different discussion altogether. So this is how I wanted to link development with sociological imagination, with agency, social structures, our choices. और एक कंसेप्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी यहाँ पर, सोशल डिफरेंशिएशन. अब आई हैव heard a lot of these remarks like जिसका जैसा नसीब है उसको उस हिसाब से मिलता है, या the idea of talent based rewards और skill based whatever rewards, या survival of the fittest in society. ये सब बहुत easily हमें सुनने को मिलता है. बट what are we exactly talking about? इसमें हम एक इंडिविजुअल को विक्टिम या कल्प्रिट समझने लगते हैं. when we say survival of the fittest, we are talking about an individual who probably if he or she is not able to survive in a society, he or she is not fit to survive, ऐसे देखा जाता है. या अगर मुझे कम रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, मेरा सक्सेस इन इट्स कन्वेंशनल सेंस ऑफ टर्म अगर कम है, तो शायद मेरे में टैलेंट कम है या मेरे में स्किल्स कम है, ऐसा देखा जाता है. पर क्या ये ऐसा है? अगर हम हमारा सोशलॉजिकल इमेजिनेशन यूज करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एजेंसी है हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है.
So we are not operating within the same agency or within the same social structure. ये जैसे मैंने बोला ये चेंज होता रहता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो जैसे ये राइट साइड में ये जो ऊपर वाला कॉमिक है वो बहुत लोगों ने देखा होगा. ये जो ट्रैक में ऑब्स्टैकल्स है वो सिर्फ दीज आर ओनली फॉर विमेन. सो if you see the social structure of gender is playing here. औरतों की एजेंसी शायद in would be lesser than the agency of these men. वो स्पेस ऑफ फ्रीडम उनका कम होता है. इसीलिए वी डोंट सी जो स्टैटिस्टिक्स बहुत लोगों ने देखा होगा कि लेबर फोर्स में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, या फिर some type of jobs are only reserved for men, for males. So does it mean that women are less talented or they are not fit to survive, or या उनका नसीब खराब है? It's not, it might not be that. There a larger social structure plays a role here, which is what social differentiation is. और ये हो गया जेंडर लेंस. ये जो नीचे का कॉमिक है इट टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास. क्लास मतलब इनकम बेस्ड या हमारा हम वेल्थ बेस्ड जो डिफरेंशिएशन है उसको क्लास बेस्ड डिफरेंशिएशन बोलेंगे. So he asked the professor, he or she, the professor asked, are you planning to go to Oxford? Wonderful. What class are you in now? So the student replies, ruling class. तो मतलब कुछ पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज शायद रिजर्व्ड होती है. तो हमारा एजेंसी कितना है, it decides what access, what kind of opportunities do we have access to. Yes, yeah, whether or not I will get access to education. या बहुत सिंपल चीजें जैसे डिग्निटी और हमारा वेलबींग, ये सारी चीजें वो स्ट्रक्चर या वो एजेंसी या वो सोशल फोर्स डिसाइड करता है. और इंडिया में तो हम ये बहुत लेवल्स पे देखते हैं. तो ये इंटरसेक्शनैलिटी जो यहाँ टर्म है, इट माइट बी वेरी बिग, इट माइट लुक लाइक अ वेरी बिग टर्म, बट उसका सिंपल यही है कि सिर्फ एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर या एक टाइप ऑफ सोशल फोर्स हमारे चॉइसेस को शेप नहीं करता है. जेंडर, कास्ट, क्लास, रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, ऐसे सारे जब फैक्टर्स एक साथ आते हैं, ये सब फैक्टर्स जब ओवरलैप करते हैं और फिर वो जब हमारी एजेंसी को शेप करते हैं, उसको हम इंटरसेक्शनैलिटी बोलते हैं. हमारा एक्सेस कितना है किसी भी चीज को, किसी भी चीज तक, या हमारे चॉइसेस कितने लिमिट हो रहे हैं, ये सारे चीजें आर डिटरमाइंड बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, एंड इट माइट नॉट बी एन इंडिविजुअल इशू और अ प्राइवेट ट्रबल जैसे हमने पहले देखा था. इट माइट प्रोबेबली बी अ पब्लिक इशू. This I was talking about social differentiation for a specific reason. जो हम डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, या जो डिस्कोर्स या जो प्रोसेस हम डेवलपमेंट का चूज करते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि प्रोबेबली हमारे जो पॉलिसी मेकर्स या जो लीडर्स या even हम citizens, when we talk about development, we don't usually consider these factors, or we don't focus on or we don't look at development as providing equal access or equity in access to opportunities. इसमें फिर से मैं अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट एज एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम लाना चाहूंगी कि the kind of development that he talks about is expanding the realm of this agency. ये inequities, ये जो social differentiation है based on different social structures, इसको कम करना, can we call this as development?
ग्रीन रेवोल्यूशन का जैसे एग्जांपल दिया, और वन मोर एग्जांपल विच आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि बहुत सारे ट्राइबल एरियाज को हम अंडर डेवलप्ड हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में भी या पॉलिटिकल डिस्कोर्सेज में भी उसको अंडर डेवलप्ड एरियाज कहा जाता है. सो व्हाई अंडर डेवलप्ड और व्हाई अनसिविलाइज्ड, which lens are we looking at when we talk about the so-called underdevelopment of tribal areas? हम क्या जो मेन स्ट्रीम हमारे आइडियाज में जो चीजें नहीं आती है, नहीं बैठती है, उसको हम अंडर डेवलप्ड बोलते हैं क्या? या सो फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज में बहुत सारे ऐसे वैल्यूज देखे जाते हैं जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट को चैलेंज करते हैं, दे वैल्यू दीज प्रिंसिपल्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज. जैसे मैंने ग्रीन रेवोल्यूशन में जैसे बोला कि हमारे चॉइसेस को लिमिट किया गया. ट्राइबल सोसाइटीज में इन्हीं चॉइसेस का बहुत डाइवर्सिटी होता है हर चीज में, जैसे द काइंड ऑफ क्रॉप्स दैट दे ग्रो और लेट्स से द काइंड ऑफ कल्चर्स और ट्रेडिशंस दैट दे फॉलो. इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी होता है. तो क्या ये डाइवर्सिटी का ज्यादा होना डेवलपमेंट है क्या? ऐसे बहुत सारी चीजों को हम डेवलपमेंट बोल सकते हैं. इट माइट नॉट फिट इनटू आवर मेन स्ट्रीम आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. अंजन, हाँ, एक्चुअली सुमित का एक सवाल है कि कैन वी कॉल सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटी एज डेवलप्ड? ऑफ कोर्स दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट. जो इनफैक्ट जो गांधी जी का मैं बोल रही थी, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज at very local level. So self sufficient villages he used to talk about, जहाँ पर प्रोडक्शन और कंजम्पशन विद इन द विलेज ही हो, किसी बाहर की चीजों पर ज्यादा ना डिपेंड करना पड़े. ये जो यूनिट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी है, ये अब आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपांड हो गया है. नाउ वी हैव मूव्ड फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल. और अब इतनी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंसी किसी सोसाइटी में नहीं है. बट वी डोंट कॉल दीज नॉन सेल्फ सफिशिएंट सोसाइटीज एज डेवलप्ड. तो अगेन बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी मेन स्ट्रीम और डोमिनेंट आइडिया ऑफ डेवलपमेंट. तो यही सारे जो बातें हमने की अभी, उन डॉट्स को मैं कनेक्ट करके बोलना चाहूंगी कि ये जो वर्ल्ड व्यूज है या ये जो डोमिनेंट आइडियाज है किसी चीज के डेवलपमेंट के, फॉर एग्जांपल, ये बहुत शेप करते हैं कि हम किस डिसिप्लिन से एक्सपोज्ड है. जैसे हम देखेंगे कि बचपन से फ्रॉम स्कूल और इवन फ्रॉम आवर होम्स बहुत फोकस किया जाता है कि साइंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन आर्ट्स प्रोबेबली. और इवन इन आर्ट्स इकोनॉमिक्स इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस. तो ये जो डिसिप्लिन्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, यही शायद हमारे वर्ल्ड व्यूज भी शेप करते हैं. इसीलिए इवन एज अ सोसाइटी और इवन एज इंडिविजुअल्स वी हैव अ वेरी लिमिटेड और अ वेरी नैरो वर्ल्ड व्यू ऑफ थिंग्स. और मुझे ऐसे लगता है कि ये सब it's related to the disciplines that we are exposed to right from our childhood. और ये एक this was one of the major reasons why I wanted to introduce sociology as one of the disciplines or one of the lenses from which to look at development. क्योंकि मेरे लिए भी सोशलॉजी का एक्सपोजर बहुत लेट हुआ है इन माय मास्टर्स और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन सोशलॉजी, इसीलिए मुझे ये डिस्क्लेमर भी पहले देना था कि मैं ज्यादा कुछ सोशलॉजी के बारे में बात नहीं कर पाऊंगी. पर ये सिर्फ एक लेंस था जो इंट्रोड्यूस करना था, जो अब मेरे वर्ल्ड व्यू को जिसने बहुत शेप किया है. Now my ideas of development have changed a lot after my exposure to sociology. So
and this is just one of the lenses. Again, also I'm not trying to propagate only one lens. There are millions and multiple other lenses or worldviews or perspectives from which we can talk about development or look at development. ऑल्सो हाँ सॉरी, इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी. चारुता ने अपने सेशन में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस की बात की थी कि we should have interdisciplinary approach to research or academics or anything. वैसे ही डेवलपमेंट के डिस्कोर्स में या उसके कॉन्वर्सेशंस में या उसके डिसीजंस में ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लाना भी उतना ही जरूरी है. अभी ऐसा हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रोग्रेस का वर्ल्ड व्यू लेके डेवलपमेंट को डिफाइन करते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री और इवन एज अ वर्ल्ड. And so trying to bring this interdisciplinary approach even in development becomes very important, according to me. Also, why should we care about these things? अब मतलब शायद कुछ लोग बोलेंगे कि हम we are not associated with this और हमारा fields different है. But if you see the caste, class, gender, these things are very important things which shape our day-to-day life. हम as individuals जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिस तरह से हम सोसाइटी को या the way in which we imagine the world will have a lot of say in how we look at the society or how we want to shape the society. Also अब बहुत देखा जा रहा है कि इस इंडिफरेंस या इस फोकस ऑन ओनली वन टाइप ऑफ वर्ल्ड व्यू के वजह से ऐसा हो रहा है कि बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं. जैसे आई मीन when I say that indifference and not looking at these things have created irresponsible citizens or leaders. इसके मुझे कुछ एग्जांपल्स जो अभी रिसेंटली हुए हैं, सबने बॉयज लॉकर रूम के बारे में सुना होगा, या अभी जो कोरोना के लॉकडाउन, कोविड के लॉकडाउन के बाद जो माइग्रेंट्स का इतना बड़ा एक्सोडस हम देख रहे हैं. why are these things happening? Probably हमारे we had not in our collective imaginations, probably some sections of society doesn't exist at all. We had not thought about migrants as one section of people who exist in the same society as we do. या क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर हम बात करें, हमने एक ही तरह का डेवलपमेंट इतना परस्यू किया दैट वी स्टॉप लुकिंग एट अदर काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके वजह से अब हमें ये सब इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं. इस वजह से मुझे लगता है ये सेंसिटाइजेशन हमारा बहुत अर्ली एज में या फ्रॉम चाइल्डहुड इट शुड स्टार्ट, राइट फ्रॉम होम एंड राइट फ्रॉम स्कूल. why should only like a specific discipline be given more importance? Why not, जैसे सोशोलॉजी तो स्कूल लेवल में हम पढ़ते ही नहीं है. सोशल साइंसेस के नाम पे सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, मैक्सिमम यही सब सिखाया जाता है हमें. क्या इस वजह से ऐसे लोग आ रहे? आई मीन, are we creating such citizens who have probably not been exposed to another world at all? Is it the reason why we see I mean migrants walking hundreds of kilometers and we don't have any solutions for them? एक और चीज जो रिसेंटली बहुत डिस्टर्बिंग मुझे लगी, एक ट्विटर पे #MeTooMigrant वाला मूवमेंट बहुत हो गया फेमस कि why are we focusing only on these migrants? जैसे मैं भी कहीं और काम करती हूँ, where I stay and the place of my work are different. I am also a migrant. But here we are forgetting the agency aspect. मेरा agency बहुत बड़ा है, मेरे privileges बहुत ज्यादा है. So such kind of movements are very disturbing क्योंकि हम बहुत insensitivity दिखाते हैं कुछ sections के, कुछ sections of society के तरफ. और
या हम ये सोशल स्ट्रक्चर्स देख ही नहीं पा रहे हैं जो हमारे चॉइसेस को शेप कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे ये दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। इसको मैं एक बुक में, दिस इज वन बुक विच आई एम रीडिंग नाउ। हर्ष मांडे एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। हिज book is called Looking Away. He talks about the same indifference which I was just mentioning, कि हम इतने इनकम्पैशनेट और इनसेंसिटिव और इंडिफरेंट हो गए हैं हमारे आसपास के इनइक्वालिटी और सफरिंग को लेकर। तो I will just read one excerpt from this book. He says, there is indeed a startling absence of compassion among a majority of well-to-do Indians towards the millions who have no advantages of birth to shield them from hunger, oppression, violence, squalor, and humiliation. A dispassionate external observer would be bewildered by middle-class India's capacity to look away when confronted with enormous injustice and suffering by our society's cultural comfort with inequality. This comes as a shock to me that we have become comfortable with the idea of inequality in the society. We have chosen to look away from this suffering and the injustice that is around us, that is so stark and that is so prominent. So I would just like to end by saying, let's not look away, and let's try to be conscious about these things also. Thank you. और I would especially like to thank चारुता, जिसको मैंने बहुत तंग किया है. She really motivated me a lot for this talk. So thank you. Thank you. बाबा कुछ भी. ठीक है. Kanjan, if you could stop sharing the screen, then we could. Yes. Yeah. Yes. Q&A. So first Thanks, of all, I Kanjan. think while Kanjan is sipping some water, she should. Round of applause for Kanjan. टाळ्या एकदा जोरात. Thank you. अंजन, Yes. सबसे हाँ. पहले तो आपका अभिनंदन कि 1 घंटे के वो कट्टे में एग्जैक्टली 30-35 मिनट में तेरा टॉक हो गया और 10-15 मिनट टाइम बच गया बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये आ गया, नील आ गया, बिल्कुल एकदम. किसी विषय को कंसाइजली बताना बहुत क्या कहते हैं, कठिन जरूरी होता है. है. नहीं, वो कठिन होता है बताना, मतलब कठिन विषय को भी कम समय में बताना. मुझे पता है तूने जितना भी बताया उससे और ज्यादा बता सकती है शायद, फिर भी तूने कंट्रोल्ड वे से और उदाहरणों के साथ एक कठिन विषय को प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी वगैरह सब हमें आज तक कभी भी हमारे साइंस वालों को पल्ले नहीं पड़ा है. मतलब मेरे बीएससी के जर्नी में कभी आया ही नहीं है वो, क्योंकि हमारा बीएससी तक का एजुकेशन कभी इंटरडिसिप्लिनरी था ही नहीं, तो उसमें ये सारी चीजें कभी नहीं आई थी. तो पहली बार तेरे वजह से बहुत सारे टर्म्स और एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव समझने को मिला. सो थैंक्स अ लॉट. आई एम स्टिल डाइजेस्टिंग इट, सो क्वेश्चन शायद बहुत देर से आएंगे. ठीक है, बट आई होप मुझे कुछ लोगों का तो, जो मैं जिन लोगों को जानती हूँ उनके बैकग्राउंड्स के बारे में तो पता था, पर काफी ऐसे लोग हैं मुझे नहीं पता कि वो किस बैकग्राउंड से आते हैं. तो जैसे मैंने बोला, ये स्पेसिफिकली मुझे उन लोगों के लिए करना था who are not exposed to, जैसे तूने बोला कि ये सोशियोलॉजी जैसे डिसिप्लिन. तो मुझे एक फीडबैक भी चाहिए होगा कि was it too technical or was it too difficult to understand, और जिन लोगों को ये ऑलरेडी पता है चीजें, उनके लिए शायद कुछ नया ना हो, पर क्या उनके लिए कुछ वैल्यू एडिशन हुआ क्या, या कुछ जो चीजें मैंने बोली did it make any sense to those people. तो I mean I would also like to have the feedback.
Yeah, actually, what I should say कि वो neoliberalism का जो तूने bit बताया था, so if you want to elaborate on it now, you could do so, and like with that, I think you can also tackle one feedback I would have for not just for you but for everybody. Like I think whatever discipline we come from, we tend to we tend to stick to the jargon of the discipline. So when we are talking with the audiences, lay people, I think we just have to unpack those terminologies. So that's why. So I think you can take this as an opportunity to unpack neoliberalism और जो भी तुझे elaborate करना था उसको. हाँ, exactly. Sorry, I shouldn't have used such a big word. ये सिंपल चीज है न्यूलिबरल कैपिटलिज्म. मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मैं भी इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है कि जो एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आई थिंक 1994 में इंडिया में आए, इस दौर के बाद को शायद नियोलिबरलिज्म कहा जाता है. नियो मतलब न्यू. इसमें आई मीन यही है कि मार्केट्स को ओपन अप किया गया फॉर ग्लोबल प्लेयर्स, फॉर प्राइवेट प्लेयर्स. जो सेक्टर्स, जो इंडस्ट्रीज सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर्स थे, उनको प्राइवेटाइज किया गया. ये जो लिबरल मतलब थोड़ा इसको भी हम फ्रीडम ही कहेंगे, ये जो आया मार्केट में, ओपनिंग अप ऑफ मार्केट्स और कैपिटल बूम जिस शायद हम कह सकते हैं, इसको मैं न्यू लिबरल कैपिटलिज्म कहती हूँ. ये बहुत ही हार्डकोर इकोनॉमिक का कंसेप्ट है. तो अगर यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट है who would like to elaborate properly, I think Akshay is here. Do you want to elaborate on neoliberal capitalism, Akshay? So thanks Ranjan. So जो आपने जो कैपिटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म के बारे में बताया वो काफी हद तक सही है. इसेंशियली 91 के रिफॉर्म्स के पहले तक बहुत सारी जो एक्टिविटीज थी इंडिया में, सब गवर्नमेंट कंट्रोल थी. बट हमने फिर ये एक क्राइसिस के टाइम पे एक डिसीजन लिया कि सब काम गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती. काफी सब चीजों के लिए हमें प्राइवेट कंपनियों को, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स को, उनको एक, जैसे आपने जो वर्ड यूज किया काफी बार, एजेंसी देनी पड़ेगी, कि उनको हमें एक फ्रीडम दे कि वो कुछ भी जिस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना चाहे, जिस तरह से वो अपना बिजनेस चलाना चाहे, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है उसको हम किस तरह से अनलीश कर सकें, तो उसे हम न्यू लिबरलिज्म कहते हैं. सो एज अ कॉन्सेप्ट न्यू लिबरलिज्म वाज अ लैंडमार्क काइंड ऑफ अ मोमेंट फॉर इंडिया. बट उसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ये आए हैं कि बहुत सारी चीजों की वजह से, इन सब हम जब हर चीज को बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड या फिर हम सब चीजों को बहुत ही बिजनेस के टर्म्स में जब हम मेजर करते हैं, तो जैसे आपने सोशल चीजों के बारे में बातचीत की, तो दोज थिंग्स गेट निग्लेक्टेड. सो यू कैन नॉट रियली मेजर return on capital and also measure, say, how many people have actually been benefited from using a company's products. So to that extent, neoliberalism as a concept is very powerful, लेकिन उसमें कुछ checks and balances भी होनी चाहिए, ताकि जो एक humane angle उसमें किस तरह से हम incorporate कर सकें. That is the best balance the world really needs. So I hope I've been able to explain what neoliberalism really means. Thanks Akshay. Also I would like to add कि जो मेरे एक स्लाइड में डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम आइडियाज थे, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब की जो मैं बात कर रही थी, वो आई थिंक दीज आइडियाज आर रूटेड इन दिस कैपिटलिज्म विच वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. तो मतलब एक कंट्री का अगर जीडीपी हाई है, तो मतलब अगर इकोनॉमिकली हम वेल ऑफ है, तो हम एक डेवलप्ड कंट्री है, ये माना जाता है. ये ना खंजन या अक्षय जिसने अभी एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि ये जो सारे टर्म्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कि हम सब समझते हैं ठीक से. मतलब जीडीपी या न्यू लिबरलिज्म इतना भी आपने समझाया, लेकिन फिर भी मैं मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे समझा है आपने दोनों ने जो भी कहा है. शायद वो सेल्फ इज अ स्कोप ऑफ ए 30 मिनट भाषण. Yes, it is. Absolutely. Khanjan,
एक्चुअली अगर तेरा मतलब वाईफाई ठीक से चल रहा है तो एक्चुअली तो स्विच ऑन कर सकती है तेरा वीडियो, ताकि सब लोग देख भी सके तो कैसे कैसे एक्सप्लेन करिए. एंड एक्चुअली अरुणिमा हैज अ क्वेश्चन, सो अरुणिमा इफ यू वांट टू अनम्यूट योर माइक एंड आस्क योरसेल्फ, दैट शुड बी फाइन. Hi, Kanjan. Hi, Arun. I'm sorry for joining in a bit late, but I joined in right when you were talking about the apathy, that the middle class, that is prevalent in the middle class, right, towards the poor. So I just wanted your thoughts on, how big a role you think media has to play in this. Like, do we think that the middle class knows about poverty? And when we talk about poverty, do they really understand the setting of a village or a household in the village and the income that is generated in that household? So just your thoughts on that does media have a role to play in this? Yeah, media does have a role and it has a big role to play in this, I would say. जैसे हर्ष मांडर के इस बुक में भी है, पी साईनाथ who is also a very famous journalist, he talks about how media, जैसे मैं बोल रही थी कि हमारे इमेजिनेशन में शायद कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, वैसे ही मीडिया में इन सेक्शंस का कवरेज ही नहीं है, इन सेक्शंस के इश्यूज की हम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें तो ये कवर ही नहीं होता है कि रूरल इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है, या इवन अर्बन इंडिया में मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस जो है, जो स्लम्स में रहते हैं, जो पुअर है, जैसे ये माइग्रेंट वर्कर्स का अभी इतना मीडिया उछाल रहा है. P. Sainath, he says in a lot of his talks that this is not a new issue. Migrants have been walking towards their homes or towards their places of work for a very long time. But because अभी ये इतने स्केल पे हो रहा है, इसीलिए मीडिया ने उठाया, और क्योंकि ये मीडिया ने उठाया, हम इसके बारे में अब रोज बात करने लगे. So the I mean, just not talking about these issues, I think, also shows our apathy towards these sections, and media has a huge role to play in this, I think. Peter? Kanjan, I have a question, actually. So you mostly discussed about kind of socialist philosophy and what is wrong with the current world, which is kind of adapting capitalist mindset, right? But there must be like a few positive aspects of capitalist philosophy and stuff like that. So basically my question was that would you be able to describe at least a couple of features that you think are most important as far as capitalism is concerned? Yes. First of all, I think I should apologize if I have come across as, I mean, I tried my best to not let my biases and prejudices come in this talk, but I think I couldn't do that. It was very clear. But the only idea was to let people know that the mainstream is not the only thing, but there are like other things as well. But yes, I do agree that capitalism, not just few, but it had a lot of positives in the development of our country. I remember one of our professors had said that it was believed when we brought in these reforms, it was believed कि ये trickle in करेगा towards all the sections. So मतलब जैसे there is inequality, if you can see my hand, if there is inequality in between two sections of people, capitalism will raise both the bars. It might not address this inequality, but it will bring a lot of people or a lot of section of the society out of the poverty line that they have defined. It will bring a lot of people out of destitution, out of starvation, जो काफी हद तक हुआ भी है. शायद as a whole एक standard of living बढ़ा भी है, but I would not say that it has reduced this inequality. It has in fact increased the inequality, और इसीलिए शायद overall economically हम progress किए हैं, क्योंकि एक section of society बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, but दूसरा section अगर ऊपर उठा भी है तो भी I mean this different gap has not been addressed by
actually Manohar Kabir, if you can unmute your mic and. Hi, yeah, मेरा क्वेश्चन था कि एंड में जो कंजन ने किताब के बारे में मेंशन किया है उसमें मिडिल क्लास आया और समहाउ ऑलमोस्ट हर डायलॉग में मिडिल क्लास इनसेंसिटिव है और मिडिल क्लास को कुछ करना चाहिए, बट ऑनेस्टली मिडिल क्लास की डेफिनेशन क्या है? उसमें भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो जीडीपी के ब्रैकेट्स हैं या मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन कुछ हद तक समझ आता है, बट इसकी वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इफ एनीबॉडी कैन शेयर. I honestly I can't define what a middle class is. जैसे जैसे I was talking about the difference in the different sections of the difference between the different sections of society, वैसे ही everything is relative. तो मतलब if I say rich and poor, these are also relative terms. I can't define who is rich or I can't define who is poor. In fact, I can't even define what poverty is or below poverty line, and who decides the poverty line, or who decides who is above or below the poverty line. So all these are debatable and questionable. Khanjan, I would like to interrupt, sorry. Yes. But इकोनॉमिक्स में अपने कंट्री के पॉलिसीज में लोअर इनकम ग्रुप जिसका इनकम जैसे कुछ साल पहले ऐसे कुछ तो था कि 20 रुपए डेली से कम है, दैट इज कंसिडर्ड एज लोअर इनकम ग्रुप्स. देयर वेर ब्रैकेट्स. Just technically what you are saying is very true, but there are definitions for income. Yes, and which class you fall in based on purely your income, nothing else. Yes, so and poverty का भी definition है. जैसे मैं जिस और उसके अलग अलग एंगल है. जैसे मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी वहां पे वो जो यूनिवर्सिटी है वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके लिए जो टॉयलेट्स अवेलेबल है, जितने क्लासरूम्स अवेलेबल है, तो एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स इट वाज पुअर. तो हर चीज का जब अपन पुअर बोलते हैं तो उसका स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, मतलब टेक्निकली. यस, मिडिल क्लास का भी डेफिनेशंस तो हमारे इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी में है ही कि इफ यू आर अबव अ सर्टेन इनकम, व्हिच आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज, यू आर इन द मिडिल क्लास. But again, as I said, we are again looking at these terms of poverty or class from one lens of economics. तो इस बुक में भी मिडिल क्लास बहुत बार यूज किया है, एज मनोहर सेड, पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये मिडिल क्लास भी सिर्फ यू कैन से इट्स ओनली 10% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री. सो if you see the definition also, 90% of people are I mean below the middle class levels also. So I mean you can question these definitions also, and you can मतलब हम इसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, पर जो एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन है वो आई थिंक आई विल हैव टू लुक फॉर इट्स. मिया ने शायद कुछ लिंक भेजा है तो उससे शायद मिल जाएगा. और actually Sheetal, can I ask one more? Yeah, actually we have a couple of people already lining up. So just a moment. Actually Sheetal ने इसके ऊपर comment किया है कि there are specific like how many rupees per person per month in a city versus. So I can save that particular chat and we can talk about it. Rural versus urban, or that definition, 5,000 rupees per person per month in city and 4,032 rupees per person per month for rural area is defined as level to the below poverty line by government. I read it somewhere. So such levels of economic difference are probably defined. So I think like that is the elaboration of your what you were saying. Charuta, after Manohar, I would also like to just add a funny thing. But then I think you should, if it is related to this, you should add it here. And Manohar too, I'm so sorry, I just didn't mean to cut you there. Just in case if it's a different question, then we should move on to somebody else's. That's what I mean. Sorry, I lost you. I was saying it's sort of related, but a different question. So I can wait for another turn, or I can ask now, as it suits.
If it's a different question, then I think we should take Advait's question. But Vidula, तुला जे काय बोलायचं होतं ते, if it's related. हाँ, मुझे ये बोलना था कि also there are like funny things which governments, not just this, any other governments they do. So because they want to, have a good image of the country as a whole, and also there are many other factors. So क्या हुआ था कुछ साल पहले, तो कुछ परसेंटेज ऑफ अपने इंडियंस बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऐसे हल्ला हुआ. तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है वो ही लोअर कर दिया. जैसे 20 रुपया अगर किसी का है इनकम, जैसे अपन समझ रहे हैं कि पॉवर्टी लाइन, देन दे रिड्यूस्ड इट टू 15, लेट्स से, फॉर एन एग्जांपल. दिस इज नॉट एक्यूरेट फिगर्स, बट दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली. एंड सो बिकॉज उनका डेफिनेशन ही नीचे हो गया, तो अपने आप मतलब पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन कम हो गए. सो ऐसे भी मतलब इकोनॉमिक्स इज, it can be very funny. Statistics and economics both can be funny. I just wanted to add that. मतलब बहुत उसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं जो अपने एंड प्रोडक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो जो एनालिसिस के टूल्स होते हैं, वी डोंट नो दैट. और ये इंडिफरेंस जो मैं बार बार बोल रही हूँ, ये इन पॉलिसीज में भी दिखता है. जैसे बीच में किसी पॉलिटिशियन ने कमेंट किया था कि यू जस्ट नीड व्हाट 22 रुपीज टू eat a meal, या ऐसे कुछ था कि तुम दिन भर का खाना इतने पैसे में खा सकते हो. How and what gives you the right to decide these things, right? I mean, you are so indifferent to something that you have started mocking it in a way. So मतलब खंजन, सॉरी अगेन टू ऐड, पर मेरे को जो लगता है सिद्धार्थ ने जो सवाल पूछा कि कैपिटलिज्म में एक्चुअली इंसान का एस्पिरेशंस, प्रॉफिट मेकिंग दे कंसिडर. सो जहां तक मैंने सोशियोलॉजी पढ़ा है, जितना स्कूल में पढ़ा है, और उसके बाद जो थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें ये था कि उसमें ग्रोथ इंसान का जो ओरिजिनल एस्पिरेशन है एज इनहेरेंट नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कि ग्रोथ चाहिए उसको मोटिवेशन चाहिए उसके लिए. तो ये इनफैक्ट कैपिटलिज्म में होता है. जैसे तू 22 रुपए में खाना खा सकती है, लेकिन तुझे खाना है क्या, एंड तुझे 200 रुपए का खाना खाने का कौन चॉइस देता है. सो आई थिंक ये जो एस्पेक्ट है, ये कैपिटलिज्म में कुछ हद तक एड्रेस होता है. ओके, इंटरेस्टिंग. हॅलो, हाँ अद्वैत. हाँ चारुता. हाँ, तुला विचारायचा प्रश्न अनम्यूट करून. अच्छा, actually my question would sound a little innocent because I'm totally new to this subject altogether, and since engineer I had no relation with economics up till now. So मेरा सवाल ये था कि हेलो. हाँ पूछ. हाँ, तो खंजन, मेरा सवाल ये था कि every approach of a development, let's say, जो गवर्नमेंट तरीके उठाती है गवर्नमेंट या डेवलपमेंट के लिए, तो हर साइड इफेक्ट्स तो होंगे हर एक के. तो अभी हमने स्पेशली नियोलिबरलिज्म के लिए साइड इफेक्ट जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, या मनोहर सर ने जो बताए, तो अभी इन दैट सेंस एक कंट्री का जो एक्सपांस है, मतलब हमारा कंट्री में इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर्स है, इतना अलग अलग वेज में, कॉम्प्लेक्स वेज में मनी फ्लोज इन अवर कंट्री. तो अपने जैसे कंट्री में ऐसा बैलेंस अप्रोच आना, इज इट पॉसिबल इन नियर फ्यूचर आल्सो? I don't know if I am I don't think if I can answer your question properly, पर ये बैलेंस अप्रोच क्या है, यही एक क्वेश्चन है कि कोई अप्रोच बैलेंस. हाँ, as in what is balance and whose balance and मतलब किसका बैलेंस, किसके पर्सपेक्टिव से बैलेंस्ड, ये सब है. तो I mean, there are no, as I said, there are no black and white answers to any of these things. It's all जैसे मैंने बोला कि डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, पर इसके डेफिनेट कोई जवाब नहीं है. पर
मतलब मेरा पूरा इंटेंशन जो मैं बार बार बोल रही हूँ वो यही है कि जो हम फॉलो करते हैं, जो हमें लगता है कि यही है, सिर्फ यही मेन स्ट्रीम है, जैसे जो गवर्नमेंट भी अप्रोचेस ले रहा है, we should keep questioning these things. We should try and bring in new perspectives in this. अभी अगर if we start adopting, जैसे जीडीपी जो एक हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस मेजर करने के लिए जो एक इंडेक्स है, उसको हटा के अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स लाते हैं, या देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाते हैं, इवन दीज अप्रोचेस आर नॉट बैलेंस्ड, या जैसे हम जिसको कहेंगे ये सही जवाब है, इसको हटाओ इसको लाओ, ऐसे तो कुछ हो ही नहीं सकता है. as you said, as Advait said, there are side effects of everything, but हमें डिसाइड करना है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी और एज अ कंट्री कि हमें किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है. हमें हमारा जीडीपी बढ़ाना है, या हमें हमारे इनइक्वालिटी को कम करना है, या हमें हमारे एनवायरनमेंट पे ध्यान देना है, या हमें हमारे बिजनेसेस पे ध्यान देना है. सो इट वी हैव टू डिसाइड व्हाट आवर प्रायोरिटीज शुड बी. मेरे तरफ से तो यही एक जवाब है. आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, बट अगर इसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज. Yeah, partly you have answered the question. Only thing is this is too subjective. I mean, जो लेवल से चालू करेंगे, you take a village, then the priorities of approach towards development will be different. You take a city, it will be different. You take state, it will be different. So it is too subjective to talk, you know. Yeah, it is actually. I was of humanities and sociology. Actually, I would quickly add there because even if we talk about like cities or villages or anything, there are other spaces. Actually, you define it differently. We can start from like let's say farms versus like people living around rivers, lakes or something. So even in terms of ecology, if you want to think about it, and there was a word which Khanjan mentioned, is social and ecological systems. So our systems have become so complex that we also want to keep the ecological balance on those within those social systems. So I think like in a very general perspective, if you want to see that we do have problems which are global, where, for example, climate change, which is affecting our landscapes, the way we deal with this landscape and live with them, or because they are our livelihoods. So these are all things they match up. So although these changes or anything that is happening, these bigger actors and drivers, they are global. Each ecosystem and each space is different. So we have to think globally. While thinking globally, we have to act locally. So I think each system will have its own set of problems and solutions, and that's the way usually it is taken into consideration when it comes to the policies, especially. So yeah, so I mean that's why it's much more complicated. So I think we'll take one very related question, which is Krishna's question, that how should we bridge the gap in difference? Specifically, she's talking about what can we do on an individual scale. Khanjan, actually you are, I think the most important thing is to be aware that these gaps exist. Your voice is breaking, so can you please switch off your video for a second? I will do that. Yes. Is it better now? Yeah, it is. Yeah, so I feel at an individual scale, it's very important to be aware of these gaps or these differences and these inequities that we have been talking about. I think अगर हम इस चीज को लेकर अगर सेंसिटाइज हो गए या सेंसिटिव हो गए, तो आई थिंक एज ह्यूमन बींग्स हम अपने आप कंपैशनेट हो जाते हैं. जैसे इफ यू आर अवेयर अबाउट योर प्रिविलेजेस, you next time you want something or you want to buy something, you like, it happens with me automatically. I think whether I really need it, or will I be okay with it. If yes, then I might probably not buy it. So ऐसे छोटी छोटी चीजें, I think I don't know if it will make any difference, but just becoming compassionate or sensitive about these things, aware about these things, responsible about these things will
individually and collectively shape how we think about things and probably how we respond to things. So I mean, this is all I can say. इसके अलावा तो और कोई जवाब नहीं है मेरे पास. Yeah, I don't see any more questions. Sorry. कंजन देवी जी नमस्ते. हाँ जी जी. या कंजन ने पहली बार हिंदी. मेरा सवाल नहीं है बट एक थोड़ा सा लाइक नहीं ये जैसे अवेयरनेस एजुकेशन और ये सारी जब बातें होती है तो मुझे मतलब थोड़ा सा तो ये लगता है, मतलब थोड़ा डाउट लगता है कि कैसे पहुंचेगा. लाइक मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, मतलब जिस विलेज से बिलोंग करता हूँ, वहां पे अभी भी मेरे एज के जो लोग हैं वो पढ़ना नहीं पसंद करते. उनको कोई ऐसा ये नहीं दिखता है, प्रॉफिट नहीं दिखता है कि पढ़ने से कुछ होगा. बेटा कि वो कहीं पे जाके कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी बिल्डिंग इसमें काम करने लगे और अपना डेली वेजेस जो उनको मिलता है उसका वो लोग ये करें. तो ऐसा पढ़ाई इस सब से ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर एक 4-8-9 साल बाद की बात करें तो मैं भी वही सोचता था जो आज वो लोग सोचते हैं. तो मुझे भी कोई मेजर इंपॉर्टेंस नहीं लगता था कि क्यों पढ़ना है, या फिर ये जो अवेयर है अभी भी गांव में नहीं पहुंचता. जैसे आप अवेयरनेस की बात करते हैं तो नहीं पहुंचता है. अब ये आपके यहाँ पे टेलीविजन है और बाकी सारी चीज है, स्मार्टफोन है, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और लोग उसका यूज कर रहे हैं. बट फिर भी मतलब अवेयरनेस जो हम एक्चुअल अवेयरनेस कहते हैं उस तरह का तो मुझे आज तक नहीं दिखता है कि लोग इस तरह के मतलब सेंसिटिव इन सारे बातों को लेके. और तो थोड़ा मुझे लगता है कि मतलब क्या किया जाए इसका, थोड़ा सा ये है. मुझे नहीं लगता कि ये इस सवाल का मैं कोई जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि ये जवाब तो मैं खुद ही ढूंढ रही हूँ. जैसे आप बोल रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, हमें क्या करना चाहिए या जिससे कुछ होगा. आप तो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो तो मुझे ऐसे लग रहा है आप तो काफी कुछ कर रहे हो उस दिशा की और आप बढ़ रहे हो. बट पता नहीं, मुझे भी मैं भी खुद ये सारे जवाब ढूंढने की कोशिश खुद कर रही हूँ अभी. इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ क्या? हाँ नील. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो तूने इसके पहले जो जवाब दिया ना, वो जवाब ही इस सवाल का भी जवाब है कि थोड़ा सा ये सेंसिटिविटी मन में रखना कि हमारे आसपास ऐसी समस्याएं हैं या ये सारे एस्पेक्ट्स है हमारे आसपास, हम कुछ लोगों से थोड़े ज्यादा प्रिविलेज्ड है, इसका समझ होना खुद के लिए और उसको पॉजिटिवली दूसरों तक पहुंचाते रहना, यही इसका सवाल का जवाब है, ऐसा मुझे लगता है. क्योंकि सिर्फ खोजते रहना ये कोई सोल्यूशन नहीं है. मतलब आप खोजते रहोगे मतलब क्या करोगे? तो बेचैन होना भी जरूरी है, लेकिन बेचैन होने के साथ साथ मतलब बेचैन होना ये भी आपके देवी के सवाल का जवाब है कि आप बेचैन हो. मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरे गांव के मेरे जैसे और दोस्त अवेयर नहीं है, ये समझ में आना ये भी एक तरीके का सोल्यूशन ही है. लेकिन उस बेचैनी के ऊपर सिर्फ और बेचैन होते जाना ये सही नहीं है. वो बेचैनी के साथ साथ उसको इस तरह से बातचीत करते रहना, लोगों को पहुंचाते रहना, और जो अपने से कम प्रिविलेज लोग हैं उनके बारे में सेंसिटिविटी रखना, जब भी हो सके जहां भी हो सके उनको मदद करते रहना, उनके परेशानियों को समझना, यही सॉल्यूशन है. और हमें समझना पड़ेगा कि इससे ज्यादा बहुत कुछ करने का मतलब कर सकते हैं हम, लेकिन ये जो इतनी छोटी चीजें कर सकते हैं उसको भी अहमियत देना जरूरी है. वाह वाह नील, मस्त. मनोहर, मुझे कुछ बोलना है. मनोहर नहीं एक सेकंड मनोहर का एक्चुअली सवाल था, तो we should take it. Yes. मनोहर. या हाँ, मैं सिर्फ सवाल से पहले एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहता हूँ जो किसी ने सब्जेक्टिविटी के बारे में कही थी. एक किताब है थॉमस पिकार्टी की, कैपिटल नाम की. माफ कीजिएगा मैंने वो खुद पढ़ी नहीं है बट उनकी टॉक सुनी थी. उसमें वो ऐसे कुछ डेटा बेस्ड कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते हैं ओवर हिस्ट्री कि कैसे डेमोक्रेसी एज ए स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म को फेवर करता है.
सिमिलरली ऐसी रिसर्च भी होने लगी है जिसमें डेटा ओरिएंटेड तकनीकों से कैसे कैपिटलिज्म में कोडिफाइड है इनइक्वालिटी, कि कैपिटलिज्म फंक्शन ही करता है इनइक्वालिटी को इम्प्रूव करने में, जहाँ पे रिच ज्यादा रिच होते हैं और पुअर। तो ये एक्चुअली सब्जेक्टिव नहीं है, मैं कम्युनिज्म या किसी और की साइड नहीं ले रहा, बट अभी रिसर्च होने लगी है तो काफी अच्छे फ्रेमवर्क्स और डिजाइन्स उसमें समझ में आ रहे हैं। तो मैं चैट में लिखता हूँ 2 किताबों के नाम। और मेरा एक सवाल थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ ही है कि जब भी हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी जगह पे जब डेवलपमेंट सेक्टर की बात होती है, तो एक नेचुरल इमेज नॉन प्रॉफिट की ही आती है कि डेवलपमेंट सेक्टर नॉन प्रॉफिट है। और आजकल जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या बाकी मॉडल्स इमर्ज हो रहे हैं, उनको शायद इतनी जगह नहीं मिल पाती, या फिर एक इमेजिनेशन ही हमारी नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंट सेक्टर की हो गई। तो मैं जस्ट सभी के सामने रखना चाहता था कि क्या डेवलपमेंट हमेशा नॉन प्रॉफिट के साथ ही जाएगी? फॉर प्रॉफिट डेवलपमेंट भी तो हो सकती है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस भी तो डेवलपमेंट लेकर आते हैं। Oh. I'm glad I could let you ask the question, Manohar, now. Khanjan, Vidula and Khanjan. हाँ, मुझे I don't think this question was for me. It was, I mean, more of a thought to be left with for everyone. हाँ, of course. हाँ, मैं मेरा जितना लिमिटेड एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, हाँ, इट इज डोमिनेटेड बाय नॉन प्रॉफिट्स, पर मेरा भी अब एक्सपोजर बढ़ रहा है कि फॉर प्रॉफिट्स बोलो या कंसल्टेंसीज बोलो या सोशल एंटरप्राइजेस बोलो, जैसे लास्ट टाइम स्टार्टअप्स के टाइम सेशन में भी हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि सोशल एंटरप्राइजेस आर आल्सो स्टार्टअप्स, बिकॉज मतलब प्रॉफिट या वेल्थ के बारे में बात करते हुए भी हम वी कैन एड्रेस दीज सोशल इश्यूज। ऑफ कोर्स, आई मीन, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन अगेन हाउ यू डिफाइन डेवलपमेंट। तो yes, I think we should all think about what he said, what Manohar said. So thank you, Manohar. Vidula? Yes, I wanted to add about the earlier point when Khanjan was mentioning. So now we are talking about education. जैसे देवी ने भी बोला था कि उसके गांव में लोग पढ़ने को अहमियत नहीं देते, किसी और चीज को देते हैं। तो I like some time back I came across certain groups of people who were working in different zones, especially in Maharashtra, and their point of view was very different from ours. We think education is good, education is a good tool for people in like everywhere, cities and villages, but they had a point of view कि क्यों इनको पढ़ाना है, तो ये पढ़ के आके इंजीनियर्स बनेंगे, सिटी में माइग्रेट होंगे, तो उनके अभी जो वो काम कर रहे हैं रूरली, they are self sufficient, they are growing something, they are happy. So अपन इनको अपने सिस्टम में खींच के ला रहे हैं, अपने सिस्टम के जैसे पॉजिटिव्स है, पर अनफॉर्चुनेटली अपना सिस्टम उनके लिए डिजाइन नहीं है, तो उनको निगेटिव्स ज्यादा मिलेंगे, एंड देन वी आर bringing in more inequality. So that was another point of view for development कि इनको especially tribal areas को, जैसे हम हेमलकसा में गए थे एक कैंप के लिए, तो वो कैंप हर साल होता है कि हम जैसे लोग, जैसे मेरे जैसे लोग कि जिनको कुछ उससे वाकिफ नहीं है उनकी समस्याओं के साथ, तो वहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा सा श्रमदान कर सकते हैं, थोड़ा सा काम कर सकते हैं, and then we come back with some different information about different people. तो वो लोग उस टाइप के सिस्टम से भी बहुत नाराज है कि उनको लग रहा है कि हिमलकसा में जैसे उन ट्राइबल्स को अपने ये आमटे परिवार पढ़ा रहा है, तो वो उनको सिटीज में ही अल्टीमेटली भेज रहा है, उनको ये बोल रहा है कि तुम्हारा गांव तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो न्यू एंगल टू डेवलपमेंट कि अपन जो सोच रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट है, हर कोई वो डेवलपमेंट नहीं सोचता। हेलो, हाँ खंजन, तुझे कुछ कमेंट करना है उसके ऊपर, एंड देन हेलो
खंजन आर यू देयर? तुझा आवाज येतोय? नहीं खंजन आर यू देयर? हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, नहीं अगर तुझे कुछ कमेंट करना है उसके ऊपर, वरना लाइक वी शुड मूव. हाँ, totally agree with what Vidula said. I don't think I should add any. Yes. So 2 सवाल है अभी भी 4. नहीं मुझे इसमें ऐड करना है एक्चुअली सवाल. हाँ स्नेहल. मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ. ओके. तो देवी के सवाल के साथ जो डिस्कशन चालू हुआ था उसी में मुझे ऐड करना था कि जैसे खंजन ने कहा कि क्या हम कर सकते हैं, तो इंडिविजुअली उसने जो आंसर दिया आई थिंक कृष्णा के सवाल का, और नील ने उसको जोड़ा देवी के सवाल के साथ, तो मुझे लगता है कि हम अपने अपने लेवल पे ना कुछ कर रहे हैं. ओके. लेकिन हम चाहते क्या है कि मैं अगर 10 लोगों से बात करूं तो हर एक ने सेंसिटिव होना ही चाहिए. सो वी एक्सपेक्ट अ लॉट, और कभी कभी ना ऐसा नहीं होता. 10 में से शायद 2 लोग मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, बाकी सब नहीं चलेंगे. लेकिन इसका मतलब क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ? ऐसा नहीं होता. इसका मतलब होता है कि आई एम सेंसिटिव इनफ कि मैं 10 लोगों तक पहुंची. अब आगे क्या होगा वो देखा जा सकता है. सो नील जो बात कर रहा था कि बेचैनी जो महसूस होती है, स्पेशली देवी, तो बेचैनी हमें महसूस होना अच्छी बात है. उसको हम किस ढंग से पहुंचाते हैं बहुत अच्छी बात है. लेकिन अब वो आगे कैसे जाएगा, वो कुछ चीजें ना हमारे हाथ पे नहीं होती है. सो वी आर ऑन अ गुड पाथ, दैट्स व्हाट वी कैन से. और हमें ऐसे चलते रहना चाहिए. हम रुक गए ना तो फिर हम सोचते रह जाएंगे कि क्या होगा, और फिर सवालों में उलझते रहेंगे. So we need to move on, walk on, और बातें करना, that's the solution. Yeah, that's what I wanted to add. Yes. Anybody else want to comment on that? मुझे लगता है कि ये जो अपना एटीट्यूड है ना कि मुझे किसी का भला करना है, मुझे अवेयरनेस है किसी को फैलाना है, ये भी कुछ हद तक आई वांट टू क्वेश्चन. मुझे लगता है कि हम खुद इतने अज्ञानी हैं बहुत सारी चीजों के बारे में. मुझे लगता है कि मुझे सेंसिटिव बनना है और मुझे मेरा भला देखना है. आई वांट टू बी हैप्पी व्हाइल डूइंग एनीथिंग आई डू. ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल एंगल है विच इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक एंड हाउ वी एक्ट ऑन अ लार्जर स्केल. तो मुझे नहीं किसी को कुछ पढ़ाने जाना. मुझे बस ये बोलना है कि देखो भाई मैं ये फील कर रही हूँ, तुम क्या फील कर रहे हो. इफ यू जस्ट ask that question and it remains in the air, जो भी रिसेप्टर है ना उस क्वेश्चन के, they will receive that question. मुझे एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात मैं बताना चाहूंगी कि एक सीक्रेट सुपरस्टार नाम का एक आमिर खान का मूवी है जिसमें वो एक लेस प्रिविलेज लड़की होती है who tries to become a singer and then she becomes a singer, but उसकी प्रोसेस दिखाई है. और इन दैट प्रोसेस उसमें आमिर खान एक उसको डायलॉग बोलता है कि तुम जैसे लोग ना, तुम जैसे बच्चे, वो एक शरबत पीता रहता है जिसमें सोडा होता है, तो इन बुलबुलों की तरह हो. तुम वो बुलबुला हो तो तुमको ऊपर आना ही है चाहे कोई कितना भी दबाए. तो वैसे मुझे लगता है कि इफ वी कीप दैट क्वेश्चन इन द एयर कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आर यू फीलिंग, इवन इफ वी टॉक अबाउट इट, that is also one good way to address it. क्योंकि मेरे को भी सब नहीं पता है. मैं किसी को, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्वेश्चन हुआ, मुझे ऐसे लगता था कि एजुकेशन सबको देना ही चाहिए, पर जब मैंने ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुना कि हाँ भाई हम लोग अल्टीमेटली इनको अपने स्ट्रीम में खींच रहे हैं, इज इट रियली गुड फॉर देम, ये दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है क्या. अभी मेरे पास उसका आंसर कुछ अलग है आफ्टर मेनी इयर्स, पर ऐसे हो सकता है. तो बस हमको किसी को कुछ पढ़ाना नहीं है, हमको बस ये पूछना है कि तुमको पता है क्या. एक्सपोजर इज द की. आई फील कि जितना एक्सपोजर मिलेगा, जितना एक्सपोजर दोगे, उतना भला होगा. एग्री विथ यू विदुला. और यस, ट्रिगरिंग समथिंग इन समवन, अगर वो हमसे होता है तो it's really good. And another question raises then कि education मतलब क्या.
बहुत सारे एंगल्स है उसमें और हम सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, तो इज इट अ डेवलपमेंट और मतलब यस वो तो एक अलग ही सब्जेक्ट बन जाएगा अभी, अलग ही सब्जेक्ट बन जाएगा वो। और उसमें भी लाइक आई थिंक देयर आर इवन इनइक्वालिटीज विद इन दैट के एक्सपोजर मतलब किस चीज मतलब कितना एक्सपोजर को किसका कौन दे रहा है एक्सपोजर। सो एक्टर्स वगैरह की जो बात खंजन ने पहले कही थी, सो दैट बेसिकली इज द की कि कौन डिसाइड कर रहा है क्या हो रहा है। सो एनीवे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली, सवाल कम है लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो एक कमेंट मैं पढ़ रही हूँ कि जिसके ऊपर मुझे लगता है केतन ने सवाल पूछा है उसके रिलेशन में, तो मैं वो अक्षय के कमेंट पढ़ रही हूँ एंड देन वी कैन थिंक about it. Entry of Reliance Jio in telecom sector led to fall in internet prices in the country. Through that, classrooms in rural India can use digital learning tools and help students learn better. Jio is for-profit business, but their business is making social impact. Development is not restricted to non-governmental organizations. So, Khanjan and all. So, I agree. हाँ, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर एक्चुअली केतन का वैसे सवाल था कि इन दैट कंटेक्स्ट मतलब वो भी हो सकता है डेवलपमेंट, उस हिसाब से उसने शायद सवाल डाला था। हाँ मतलब मेरा एक पॉइंट ऐसा है कि एनजीओज हो या फिर फॉर प्रॉफिट हो, है तो वो प्राइवेट ही। सो गवर्नमेंट में ऐसा कोई है कि नहीं कि जो मीनिंगफुल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा है, एटलीस्ट सम परसेंटेज रेयर क्यों ना हो। सो ये भी एक मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, एंड इफ देयर इज दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग टू क्या बोल सकते हैं प्रोजेक्ट, एंड दैट कैन बी सेट एज एन एग्जांपल। ये सवाल खंजन को है या सबको है? सबको है, एनीबॉडी कैन आंसर। हाँ, तो मैं एज अ प्लानर पढ़ रही थी जब, और उसके बाद भी थोड़ा बहुत काम कर रही थी कुछ साल, तो मैंने जो देखा है गवर्नमेंट के लोग ना, अपने को लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहे, गवर्नमेंट काफी कुछ करता है, काफी कुछ। वो परकोलेट नहीं होता है, दैट इज फॉल्ट ऑफ अवर सिस्टम। पर पॉलिसी लेवल पे देयर आर एक्सीलेंट टूल्स अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट एंड दे ट्राई। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, ये जो इमेज होती है ना वो सही नहीं है। अगर कुछ नहीं हो रहा होता तो अपन आज इतने वंडरफुल सिस्टम्स में नहीं होते। आई नो के सब बेनिफिट नहीं होते हैं उससे, लेकिन गवर्नमेंट बहुत कुछ करता है। Yeah, and I think it's coming from Vidula's Niti Aayog experience as well, and Khanjan and lot of other policies. Yeah, there are a lot of policies कि जो छोटे छोटे लेवल पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी दूं ना, मैं एग्जांपल या मैं ज्यादा बात कर रही हूँ, अगर ऐसे है तो ये कंक्लूड होने के बाद मैं दे सकती हूँ। नहीं बोलना। जैसे मैं मेरा एक दोस्त है जो पीएचडी कर रहा था यूके में ही, तो उसका सब्जेक्ट था ये सोशल, वो भी प्लानर है, और उसका ये था स्लम डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट। तो अपने डोंबिवली में उसका एक वन ऑफ द केस स्टडी था। तो ये जो रविंद्र चौहान ने एक मतलब हर स्लम का एक, आई डोंट वांट टू से माफिया, बट होता है, एंड पॉलिटिकली सपोर्ट होता है उनको, उनके बिना वो स्लम्स वहां पे रहते नहीं। तो वो जो अभी अपना लीडर है तो उसका वो स्लम था इन दैट टर्म्स। तो वहां पे कैसे होता है कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट अलॉट किया है, ठीक है, कि जो अपने होमलेस लोग हैं या जिनके पास जो कमा नहीं पा रहे हैं, जो काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा जो वल्नरेबल सेक्शन है, जैसे बुड्ढे होते हैं या ड्रग वाले होते हैं या जो भी, मतलब उनमें जो भी आता है, तो अपने को पता भी नहीं है कि उनके खाने के लिए एक अमाउंट आता है। तो आई फाउंड आउट व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग लॉट ऑफ पीपल इन दोज एरियाज के गवर्नमेंट से उनको एक फंडिंग मिल रहा है एक औरत को, तो वो बोल रही है कि मैं हर रोज इनको वीक में 7 दिन सुबह का खाना पका के देती हूँ, मेरे को गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं। वो बोलते हैं कि तू इसमें से राशन ले, तेरा जो भी सैलरी है वो ले, एंड देन यू प्रोवाइड। अभी अपने को ये तो बात पता ही नहीं होती है कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों के खाने के लिए पैसे दे रहा है।
अपने को ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है, लेकिन एज अ प्लानर व्हेन आई वाज स्टडिंग आई सॉ सम पॉलिसीज व्हिच आर लाइक दे थिंक अबाउट लॉट ऑफ, जैसे माइग्रेंट वर्कर्स का जो इश्यू है, तुमको क्या लगता है कि ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने सोचा नहीं है कि अपने लॉकडाउन का ये इम्पैक्ट होगा? इतने नाइव लोग इकोनॉमिस्ट कर पॉलिसी लेवल पे बैठे नहीं होते। उनको किस सेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है दैट इज डिफरेंट इशू, पर अपने पॉलिसी लेवल पे बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस एड्रेस होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ सारे होते हैं या बहुत अच्छे लेवल पे होते होंगे, लेकिन बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे। यस, मुझे थैंक यू, इसमें एक ऐड करना है। थैंक यू गायत्री। हाँ, एक आधा मिनट। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये गवर्नमेंट सिस्टम्स की बात करते हैं तब इसकी ताकत को समझना चाहिए। ये इतना बड़ा ह्यूज सिस्टम है कि अगर वो हमारे किसी एक इशू को लेकर वो अगर खड़ा हो जाए तो उसमें जो ताकत है वो किसी भी नॉन गवर्नमेंट इसमें नहीं होगी। आफ्टर ऑल इट इज द गवर्नमेंट सिस्टम जो उसको एकदम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ काम करना वुड बी अ गुड ऑप्शन। अगर कहाँ एक्ट करना है, कहाँ जाना है, ये हमें पता चले उस गवर्नमेंट सिस्टम में, तो वो बढ़िया है। यस, एग्जैक्टली गुड। सो I think we can continue on and on. It's such a big topic with multiple facets. And Khanjan, actually, we have so many comments, less of questions, but like so many comments in the chat section. So what Neil and I thought that we should actually make a summary of it and we should send it to you, so then you can reflect on it whenever you like to, right? So I think everyone, thank you so much for coming. Thank you, Khanjan, first of all. It was a fantastic presentation. और amazing